लुका 13 अध्याय उसकी 31 आयत। प्रभु ਯਿਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਦਿਸ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। परसों मेरा काम पूरा हो जाएगा। आमीन। Amen. And in English, I'll read it. Luke chapter 31, verses 31 to 32. And Brandon saying hallelujah. Amen. Hallelujah. And at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. He replied, go. Tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day I will reach my goal. May the Lord bless what we have read from His holy word. Amen. Fox nu ki kende hai abhi Hindi de vich lombdi kende hai na, lombdi. So I've titled this message as lombdi, fox. और आज का मेरा संदेश जो है वो उसका टाइटल ही ये होगा लोमड़ी। Do you know everyone faces discouragement? और आप जानते हैं हर एक इंसान जो है उसके जीवन में निराशा आती है। You wake up and start the day with the plans that you have. और आप सुबह उठते हैं और आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं कुछ प्लान्स को लेकर। You made them plans. और आपने वो खुद प्लान्स बनाए हैं। And they're in your heart. और वो सारे के सारे प्लान्स आपके दिल में हैं। Then suddenly, और फिर एकदम से something springs up and it alters your plans. और कुछ हो जाता है जिसके कारण आपके सारे के सारे प्लान्स जो है वो खराब हो जाते हैं। You've made uncountable resolutions. और आपने बहुत सी अपने जीवन में इरादे बनाए हैं। Every New Year's Eve we make resolutions. और हर साल जब हम 31 दिसंबर को मनाते हैं तो हम आने वाले साल को लेकर बहुत सी इरादे अपने जीवन में रखते हैं। Yet none of them come to fruit. लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा हो पाए। Each time you think of seriously following your goals, some negative news blocks up your plans. और हर बार जब आप सोचते हैं कि आप अपने नए साल के जो प्लान्स हैं उनको कुछ इस तरह से पूरा करेंगे, कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आपका सारा का सारा प्लान जो है वो खराब हो जाता है। Fear will grip you. और डर जो है वो आपको अंदर से जो है लाचार कर देता And you है। will cancel your plans. और आपके सारे के सारी योजनाएं जो You है वो cancel कैंसिल हो your जाती goals. हैं। आप अपने गोल्स को खुद ब खुद कैंसिल कर देते Not हैं। so long ago, and we were doing the garba and everything. Remember New Year's Eve? We were doing that. We were dancing. We had so many resolutions, and yet, come now. Look, the first month is gone, and nearly half of February is gone. Where are the resolutions? और जिस तरह से हमने इस चर्च में भी 31 दिसंबर को बहुत जश्न मनाया, बहुत खुशियां मनाई और हमने डांस भी करे और हमने बहुत से इरादे नए साल को लेकर बनाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि 31 जनवरी जो है महीना खत्म हो गया, फरवरी के महीने में हम आ गए हैं और वो सारे के सारे प्लान्स कहाँ गए हैं? I'm going to lose weight. I'm going to read the Bible more. I'm going to pray more. I'm going to attend church every Sunday. I'm going to do this. I'm going to do that. What's happened? और ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सारी हमने सोची थी करने के लिए, लेकिन वो सारे के सारे प्लान्स किस तरह से पूरे हुए? Today your hope is shaken. और आज आपकी उम्मीद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। You think it can't be done. और आपको लगता है कि आप इन्हें नहीं पूरा कर सकते हैं। And I'm sorry to say, some of us even think we're absolutely useless. और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि हम ये कर ही नहीं सकते हैं। You've stooped down so low to such news and you've gone away from your God-given dreams and talents. और आपने इस तरह की बुरी बातों को सुना है, बुरी खबरों को सुना है कि आप अंदर से बिल्कुल ज्यादा टूट चुके हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए वादे या वो ड्रीम्स जो है वो आप पूरे नहीं कर सकते हैं। Guys, I'm here to tell you, wake up and listen. और मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि जाग जाओ और सुनो गौर से। The time is short. समय बहुत थोड़ा है। Have you noticed so many things are going wrong? और आपने देखा है कि कितनी चीजें जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही हैं। The war isn't stopping. और युद्ध जो है वो खत्म नहीं हो It रहे seems to be getting worse. और जितने हम देख रहे हैं कि ये बुरा समय जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा The रहा है। news is telling us that nuclear weapons are going to be introduced. और हमें न्यूज़ जो है ये बताती है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है, हथियार जो है वो बनाए जाएंगे। Heat and energy prices, all this is going to go up. और बताया जा रहा है कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। The whole thing seems to be in a mess.
और सारा का सारा आज सिस्टम जो है वो मेस में नजर आ रहा है। So we need to wake up. इसलिए हमें जागने की We जरूरत need to है listen. और हमें सुनने की जरूरत From है। this point onwards, और अभी इसी वक्त से लेकर go and tell that fox that you will reach your goals. और आप जाकर उस लोमड़ी को ये बताइए कि आप अपने गोल्स को पूरा करेंगे। Tell that fox you're going to do it. और आप उस फॉक्स को ये समझाइए कि आप ऐसा करने वाले हैं। You know your marriage? आप जानते हैं कि आपकी शादीशुदा जीवन Some marriages are going down the pot. और कुछ शादीशुदा जीवन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बदतर होते नजर आ रहे हैं। They're failing miserably and the situation isn't going to improve. But you go and tell that fox that it'll be fine. और वो सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है, लेकिन आपको उस लोमड़ी को बताना होगा कि आप अपने जीवन में ऐसा नहीं होने देंगे। You've received news that there's going to be cutbacks at your workplace and you will be made redundant. और आपने अपने काम पर ये सुना है कि बहुत ज्यादा कटबैक्स होंगे और आपको रिडंडेंट बना दिया जाएगा। This will affect your life and your livelihood, and the devil's having a good go at you, right? And so your life is at stake. और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है आपकी जिंदगी पर, आपके काम पर, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर इसका असर पड़ेगा और शैतान जो है वो बहुत खुश हो रहा है, बहुत मजा कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वो जीत गया है। Well, go and tell that fox life goes on normal for the child of God. और आपको जाकर उस लोमड़ी को ये बताना होगा कि परमेश्वर के बच्चे के लिए जीवन जो है वो बेहतर ही होता रहेगा। What about some of you have received bad news? Your health condition is so bad, and the devil is telling you you're going to suffer, you're going to die. Ever been there? और आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और आपको ये मालूम है कि ये बदतर होती नजर आ रही है और शैतान वो और भी खुश हो रहा है और वो मजा कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि सब कुछ आपके जीवन में खराब ही होता हो रहेगा। Well, you tell that fox. और आपको उस लोमड़ी को ये समझाना होगा By the stripes of Jesus Christ, you are healed. कि खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपने शिफा को पा लिया है। You receive news that you will not live to the end of this year. और आपको ये समाचार भी मिल सकता है कि शायद साल के अंत तक आपके पास जीने के लिए और समय नहीं होगा। Just go and tell that fox you will live because Christ lives and nothing will be against you. Come on, risk an amen there. और आपको उस लोमड़ी को जाकर ये समझाना होगा कि क्योंकि आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए आप जीवित रहेंगे और खुदावंद आपके साथ है। You've received news that you cannot do anything. You're just good for nothing. You just go and tell that fox you can do all things through Christ who strengthens you. और आपको ये बार-बार सिचुएशंस बताती है कि आप किसी काम के नहीं और आपका जीवन जो है वो बिल्कुल खराब होता नजर आ रहा है। आपको उस लोमड़ी को ये बताना होगा कि क्योंकि आप परमेश्वर में हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। The Herod in your life और हेरोदेस जो कि आपके जीवन का है, is the fox. वही आपके जीवन की लोमड़ी है। That fox is the power of emptiness. और वो पावर है जो कि आपके जीवन की खालीपन की है। The evil force that works for your downfall. और वो दुष्ट आत्माएं की ताकतें या दुष्ट की शक्तियां जो कि आपके खिलाफ काम करती हैं। Anything that opposes you. और वो चीज जो कि आपके आगे आकर खिलाफ खड़ी हो That जाती है। stands against the goals that you've got. और जितने भी मकसद या जितनी भी प्लानिंग्स या आपने अपने गोल्स बनाए हैं, जो भी खुदावंद के उन गोल्स के खिलाफ आकर दुष्ट की ताकतें खड़ी होती हैं, That is a fox. वो आपके जीवन की सबसे बड़ी लोमड़ी है। Sickness is a fox. बीमारी जो है वो एक लोमड़ी है। Fear is a fox. और डर जो है वो भी एक लोमड़ी Worry है। is a fox. और चिंता जो है वो भी लोमड़ी है। Sin is a fox. और पाप जो है वो भी लोमड़ी है। Discouragement is a fox. और निराशाएं जो है वो भी आपके जीवन में लोमड़ी की तरह है। Problem is a fox. और जो मुसीबत है वो भी एक फॉक्स है। Poverty is a fox. और गरीबी जो है वो भी लोमड़ी है। Hatred is a fox. और नफरत जो है वो भी Threat is a fox. और जो डर है वो भी एक A लोमड़ी है। bad friend is a fox. और एक गलत दोस्त जो है वो भी आपके जीवन में Evilness लोमड़ी is है। a fox. और जो बुराई है वो भी लोमड़ी है। Gossip is a fox. और चुगली जो है वो भी लोमड़ी है। I said the devil is a fox. और मैं कहता हूँ कि शैतान जो है वो सबसे बड़ी लोमड़ी So है। where do you stand, brothers? और भाई और बहनों, आप कहाँ खड़े होते What about हैं? you, sisters? Where do you stand? और बहनें, आप कहाँ खड़ी होती Are you हैं? listening to his voice? क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे Or are हैं you listening to the fox's voice? और या फिर आप लोमड़ी की आवाज को सुन रहे हैं? Thoughts, mixed up words, defeat you.
sleepless nights, it gets you worried. और जो आपके विचार हैं और आपकी जीवन की परेशानियां जो हैं आपको रातों को बेचैन कर देती हैं और आप रात को बेहतरीन नींद नहीं सो पाते Are you हैं। listening to God's word? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे But हैं? he says, I am with you. क्योंकि वो तो कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, He said, I am with you. वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, And if I am with you, और अगर मैं तेरे साथ हूँ then who can be against you? तो फिर तेरे खिलाफ कौन हो सकता है? Hallelujah. Listen, this is very important. You must fight to win in this thing called life. और ये जीवन जो है इसमें आपको लड़ना होगा उस चीज को हासिल करने के लिए जो कि आपके लिए तैयार की गई है। Sanctuary Church, Sanctuary members, Upper Pen, Prasade Suno, we must fight to win this thing that is called life. और हमें जो है ये चीज जिसे हम जिंदगी कहते हैं इसमें लड़ना है। Your work, you work hard. I know you work hard. मैं जानता हूँ कि आप काम करते हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं You do good things. और आप अच्छे काम करते हैं। But one day, I believe with all my heart that if you are in Christ, you will be good enough. और मुझे मालूम है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो आप अच्छे ही होंगे You will hear those words. और आप ये अच्छे शब्दों को भी सुनेंगे। Enter your rest, my faithful, good and faithful servant. और आपको कहा जाएगा कि शाबाश मेरे वफादार सेवक, तूने अपना काम बेहतरीन तरीके से करा, अब आकर आराम कर। Come on, guys, don't worry because the victory in Jesus is yours. और इसीलिए मेरे दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में आपकी है। You already have the victory in Jesus Christ. आपको पहले ही खुदावंद यीशु मसीह में जीत मिल चुकी है Step out and act and believe it. और आपको सिर्फ बाहर जाना है और आपको कदम उठाने हैं और आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह में जीत आपकी है। Every breath that you take, every step that you take, keep on giving it to the Lord. ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਹਰ ਇੱਕ सांस ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ keep on praising him. और आप जहाँ पर भी जाते हैं जो भी कुछ करते हैं उसे खुदावंद के हाथों में देकर उसकी तारीफ करते हुए उन कामों को करें। How many of you remember Sister Doris? आप में से कितने लोग सिस्टर डोरिस को याद रखते हैं? You remember them. Remember she used to come to church और आपको याद होगा कि वो चर्च जब आती थी faithfully. बड़ी ही वफादार थी वो। And we used to say, can we drop you back, Sister Doris? और जब हम उनसे कहते थे कि क्या हम आपको चर्च के बाद घर छोड़ सकते She हैं, said, well, who's going to pray for the pavements on the road? और वो कहती थी कि जब मैं चलूंगी सड़कों पर तो उनके लिए दुआ कौन करेगा? She used to pray for the pavements on the road that anybody that walks on that pavement will be in love with Christ one day. और जब वो सड़क पर चलती थी और जिस पेवमेंट पे वो चलती थी वो दुआ करते करते वहां से जाती थी कि जो भी कोई इंसान वहां से चलकर जाएगा वो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करेगा और उसके पीछे चलने वाला इंसान बनेगा। Whenever she had tea, she lived on her own, but she put 3 cups on. और जब भी वो चाय पीती थी और वो अकेली तो रहती थी लेकिन वो 3 प्याले चाय के हमेशा बना के रखती She थी said, this is my cup, और वो कहती थी ये मेरा प्याला है that's the Father's, और ये पिता का है that's the Son's, और ये बेटे का है and that's the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का है She said, that's my family. और वो कहती थी ये मेरा परिवार है। That's how she lived. और इस तरह से वो अपने जीवन को जीती थी। Oh my, I tell you something, she was a beautiful lady. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही खूबसूरत औरत She थी lived for Christ. और वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीवित रहती She थी boldly went out and lived for Christ. और वो बड़े ही विश्वास के साथ और बड़े ही ईमान के साथ वो यीशु के लिए जीती थी और उसके लिए काम करती थी She had victory in Jesus. और यीशु मसीह में हमेशा वो जीत को हासिल करती थी You have victory in Jesus. और आप भी यीशु मसीह में जीत को हासिल करेंगे Live like it. और इस तरह से जिए। Don't live in fear. Do not live in worry. Live because you are a child of God. और इसीलिए आपको चिंता में या फिर डर में या घबराहट में नहीं जीना है, आपको इस तरह से जीना है कि जीत आपकी है। खुदावंद यीशु मसीह आपको जीत दे चुका है। Revelations chapter 12 verse 11 says, they triumphed over him by the blood of the Lamb. और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी 11 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, वे मेंढे के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेरे बहन मेरे भरा सुनो केफली, अपने घर दे उत्ते है ना, अपने दरवाजे दे उत्ते खुदावंद यीशु मसीह दा लहू लगा। Place the blood of Jesus Christ on your doors. समा जिहड़ा हैगा ये चंगा नहीं हैगा।
We are going through a very bad patch and it ain't going to get any better. We need to be on fire for the Lord. Hallelujah. और ये समय जो है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय चल रहा है, इसलिए हमें खुदावन की अग्नि के साथ, उसकी आग के साथ जीना है और खुदावन यीशु मसीह के लहू में अपने घरों को, अपने परिवारों को ढक कर रखना है। Is it me or do you feel, honestly, spiritually, I am feeling something is not right, something is about to happen? और क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आत्मिक तौर पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है? Because I tell you, the devil is roaring around like a lion. और क्योंकि मैं जानता हूँ कि शैतान जो है वो इधर उधर ताक रहा है कि वो किसे फाड़ खाए। The fox will tell you that you are not forgiven. और वो लोमड़ी आपको ये यकीन दिलाएगी कि आप क्षमा नहीं पाए हैं। That the wrong things that you have done have marked you forever and they can never be washed. और वो आपको ये यकीन दिलाएगी कि वो बुरी चीजें जो आपने अपने जीवन में करी हैं वो कभी भी क्षमा के काबिल नहीं और आपको क्षमा नहीं मिल But सकती the है। truth is, लेकिन सच्चाई तो ये the है, second you repented, और जिस समय आप पश्चाताप करते हैं the sin fell off you. और वो पाप जो है वो आपसे उतर जाता है, Your वो झड़ sins जाता है have moved as far as from east is from west. और आपके पाप जो है वो आपसे इतने दूर हो जाते हैं जिस तरह से ईस्ट जो है वो वेस्ट से है, To the depths of the sea. और इतनी ज्यादा उनकी गहराई बढ़ जाती है जिस तरह से समुद्र की गहराई Where है, they are accounted no more. और वो पाप अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है And where there is no charge against you. और आपके खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं है। Isn't that good? क्या आप खुश नहीं हैं? If we confess our sins, और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते He हैं, is faithful वो वफादार है and just to forgive और वो इतना महान है कि वो हमें क्षमा कर देता है our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और वो हमारे पापों को क्षमा कर कर हमारी सारी अधार्मिकता को दूर कर देता है। The fox is whispering. और वो लोमड़ी आपके कानों में कुछ फुसफुसा रही है God doesn't guide people like you. और परमेश्वर तेरे जैसे लोगों को गाइड नहीं करता He है abandons you और वो तेरे जैसे लोगों को छोड़ देता है and you will rot in the gutter. और वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप हमेशा जो है इसी तरह से गंदगी में फंसे रहेंगे। But the truth is, लेकिन सच्चाई तो ये है, sinners are God's greatest calling. और जो पापी जो है वो परमेश्वर की सबसे बड़ी बुलाहट के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। Luke chapter 5 verse 32 says, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. और हम देखते हैं कि लूका के इंजील में ये साफ साफ लिखा गया है कि वो गुनाहगारों के लिए आया है ताकि वो उनको बुला सके। The fox is saying, live in the past. और वो लोमड़ी आपको कहती है कि आप बीते हुए कल में ही जीते रहे Dwell on your pain. और आप अपने दर्द के साथ जीवन को जिए Keep the band-aid of injury on. और आप हमेशा वो बैंडेड जो है वो इंजरी की यानी कि दर्द की लगा के रखें Be angry, और आप हमेशा गुस्से में रहें irritated, and a hoard of all the worries and the fears that you can collect. और आप इस तरह से अपने जीवन में सारा का सारा दबाव या फिर अपना बोझ उठा के रखें, जो चिंता का, फिक्र का, बोझ का या फिर जीवन में आने वाली गलत चीजों को सोच सोच कर अपने आप को आप चिंतित रखें। And he's telling you, never forget what people have done to you. Get them back. और वो बार बार आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आप उन लोगों से बदला लें जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है, उनके साथ बुरा ही करते रहें Plan your revenge on them. और आप इस तरह बदले की भावना के साथ भरे रहें। But the truth is today, लेकिन सच्चाई तो ये है, today is the only day we presently have. और आज ही वो दिन है जो कि हमारे पास है, If we live in yesterday, और अगर हम कल के साथ ही जीते रहेंगे we miss the gift of life और हम उस जीवन के तोहफे को खो देंगे and the gift of now, और जो आज का हमें गिफ्ट दिया गया है, which happens to be the only working ground for real transformation. और जो हमारे लिए आज एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने जीवन में बदलाव को ला सकते हैं। The Bible tells us it in Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. और हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि जो बीती हुई बातें हैं उन्हें भुलाकर और कल की बातों पर मत अपने जीवन में रहिएगा। The fox is saying fear everything. और वो लोमड़ी कहती है कि हर एक चीज का डर रखे। Your life is a disaster. और तेरा जीवन जो है वो बर्बादी का कारण है। You're on the verge of death. और तेरा जीवन जो है वो मौत के बहुत करीब है। Your dreams are failing. और आपके सपने जो है वो खराब होते नजर आ रहे You've हैं। got this disease and that disease. और आपके पास ये बीमारी है, वो बीमारी है। The future is bleak.
और आपका भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है You will walk with your head low. और आप हमेशा अपने सर को नीचा कर कर ही चलेंगे The pressure in your mind और जो दबाव आपके दिमाग में बढ़ता जा रहा is है getting bigger and bigger. और वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है Just give up and die. और आप सोचते हैं कि अब हार मानकर मर जाएं, The truth is, लेकिन सच्चाई तो ये है listen very carefully, the truth is this, मेरे और बहन, मेरे सच्चाई भाई. ये है God is more with you than the amount of hairs on your head. और परमेश्वर तो आपके सर के बालों से भी ज्यादा अधिक आपके साथ है। Isn't that good? क्या ये अच्छी बात नहीं He's है? with you. वो आपके साथ है। He will never leave you. वो आपको कभी He छोड़ेगा will नहीं। never forsake you. वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। If he is with you, अगर वो आपके साथ है which circumstance, which situation, which person can stand in front of you? और फिर कौन से हालात या कौन सी मुश्किलें या फिर कौन सा इंसान आपके सामने खड़ा हो सकता You don't है? have to take any notice of this fox. और आपको इस लोमड़ी की कहीं भी बातों को अपने ध्यान में नहीं लाना है Live as if there is no fox. और आप इस तरह से जिए जिस तरह से कोई लोमड़ी है ही नहीं है। Deuteronomy chapter 31 verse 6 says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि डरो मत घबराओ नहीं क्योंकि तुम्हारा खुदावन तुम्हारे साथ है, वो ना तो कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। Sister Praveen, सुनती है तुम? Take that word. Take it with you. Be strong. Be courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. और यहाँ लिखा गया है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय उसकी 6-8, तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है और वो तुझको धोखा ना देगा और ना ही छोड़ेगा। Never lose any sleep. I know it's hard to say. मैं ही कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ It's true, isn't it? Is it just me or is it that is reality? That's what happens. But tell you something. You have been set free. और ये सच्चाई है कि कई बार हमारे जीवन में इस तरह की मुश्किलें या परेशानियां और दबाव आते हैं जो कि हमारे को रातों को भी बेचैन कर देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। Never lose sleep और कभी भी आप बेचैन ना हो या फिर रात को नींद ना गवाएं because of the fox. और उस लोमड़ी को लेकर आप परेशान ना हो। My brothers and sisters, the fox has been defeated. और मेरे भाइयों और बहनों को लोमड़ी जो है उसे हरा दिया गया है, वो हारी हुई है। If it's sin in your life, it needs the blood of the Lamb. और अगर पाप आपके जीवन में है तो आपको खुदावंद यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। If it's death, और अगर वो मौत है, the resurrection power of Jesus Christ will raise you. और खुदावंद यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का जो ताकत है वो आपको आज मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। If it's the devil, he needs the Calvary experience. और Hallelujah. अगर वो शैतान है तो उसे वो कैलवरी का एक्सपीरियंस चाहिए। Go and tell that fox you will make it to the end. और आप उस लोमड़ी को ये बताएं कि आप आगे बढ़ेंगे और आप अपनी मंजिल को पाएंगे। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਭਲਾ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ I tell you something, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੌੜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ Don't be intimidated. और आप अपने आप को कम मत सोचिएगा। Don't be discouraged. और आप निराश मत होइएगा। Don't be shaken. और या फिर आप किसी भी तरह से अपने आप को आज ऐसा मत महसूस करिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते Don't हैं। fear the fox. और आप उस लोमड़ी से मत डरिए। He's finished. वो खत्म हो चुका He's है disarmed. और उसकी कोई भी ताकत काम नहीं Tell the करेगी। fox in your life today that you are the winner. और आप अपने जीवन की लोमड़ी को बताएं कि विजेता आप ही होंगे। When you tell that fox, mention your victory in Jesus from today, tomorrow, and forever. और जब आप उस लोमड़ी को ये बताएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह में जीत हमेशा आपकी है, आज कल और हमेशा के लिए। Whenever anything comes against you, you tell that fox, today I will succeed. I will be happy. Today I will smile, and today I will do anything happily.
और जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है या वो लोमड़ी जो है आपको फिक्र या बोझ तले दबाना चाहती है, आपको ये बताना होगा कि आज मैं मुस्कुराऊंगा, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं अपने जीवन में जीत को पाऊंगा क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। Then continue saying, tomorrow I will succeed. Tomorrow I will be happy. Tomorrow I will smile. Tomorrow I will do all things happily. और आप फिर कहिएगा कि फिर कल जो है मैं अपने जीवन में सक्सेस को पाऊंगा, या फिर मैं अपने जीवन में खुश रहूंगा, या मैं मुस्कुराऊंगा और मैं हमेशा ही खुश रहूंगा और मैं हमेशा ऐसा ही करता रहूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंचूं। Then continue saying, I will do likewise until I reach my goal. और फिर इसी तरह से दोहराते रहिए और उस लोमड़ी को बताते रहिए कि जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जीत को पाते रहेंगे और आप अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। Tell the fox, I will rejoice, succeed and achieve my goals. और आप उस लोमड़ी को बताएं कि आप खुश रहेंगे, आप अपने गोल्स को पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। So when the fox faces you, it could face you in all the things that I've spoken about. और जब वो लोमड़ी आपके सामने खड़ी होती है तो वो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी हालात हैं, वो किसी भी हालात में आपके सामने आ सकती Don't है। run away. इसीलिए आपको डरने की या भागने की जरूरत नहीं है Face it. और आपको उसे फेस करने की, उसके सामने लड़ने की जरूरत है। Eye to eye. और आपको आंखों में आंखें डाल के बोलना Nose है to nose. और आपको बिल्कुल चेहरे के सामने रहकर बोलना है And tell him to leave you alone. और आपको डरे बगैर बोलना है कि वो आपको छोड़कर वहां से चला जाए, Because he that is for you is greater than he that is in the world. और वो जो कि आपके साथ है वो कहीं बढ़कर है उससे जो कि इस दुनिया में है। The Lord bless you. खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। Take that word today. और आज आप इस वचन को अपने साथ लेकर जाएं You are lions. और आप खुदावंद यीशु मसीह में शेर की मानत है। Amen? Hallelujah.